उनको हुँ। ट्रॉमास की कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको हीलिंग्स की कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको जेन ज़ी कॉन्सेप्ट्स नहीं पता कि स्ले करना क्या होता है। हेल्थ जब खराब होती है ना, तब बंदा कहीं का नहीं रहता। मतलब कुछ केसेज़ ऐसे भी हैं जो लटके रहते हैं, उन पे क्या कहोगे? ना ये डिवोर्स देता, ना ये डिवोर्स देती। अगेन वही है ना कि सालों की लटकाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपकी बुक भी पब्लिश हो चुकी है, द फ्रेम। Thank you so much, Mayank, and thank you so much for inviting me over your podcast. And I'm feeling really blessed and privileged. जैसे हमने पहले एक live shoot किया था, and right now it's the same nostalgic feeling, but in a very different format and a platform. That okay, right now we are shooting a podcast. So yeah, it's a good thing. Yep. या बुक के बारे में बताएँगे हम तुम्हारे हमारे को थोड़ा-सा? So, book के बारे में it's a romantic fiction that I have written. It's for the very first time I have dived into the world of fiction, right? And बहुत बहुत एक random plan था कि अच्छा करना है and it just went up forward and मैंने सोचा कि उसको कैसे execute कर सकता हूँ मैं and it just took me like कि एक सोच थी दिमाग में काफी टाइम से बट उसको एग्जीक्यूशन में लाना मतलब बहुत बहुत टाइम से ऐसे हो रहा था कि अच्छा करना है बट इट वाज नॉट अ कंक्रीट प्लान मेरे पास कुछ था नहीं ऐसा कि कब करना है so one fine day randomly I was just sitting and having a conversation so I thought why not to give it a shot right and so I have written it and it's doing fine it's doing really well I was not expecting the response but yes response is getting good the good thing about the book is that book is being connected with a lot of people and people is getting connected with that book right people are actually loving it people are finding it more relatable because आजकल जो content आपको चाहिए होता है it's more or less it's a liking concept right suppose हुँ, I have read something and मैंने उसके साथ relate किया people are started putting the reels people will put up the on the Instagram socials or whatsoever right so I believe that I have made all those kind of like checkbox tick कि ये वाला होना चाहिए ये वाला होना चाहिए so yeah that's how the whole thing come up and yes the framed fate is the name yeah कितना टाइम लगा पूरे प्रोसीजर में? सालों में बताऊं या दिन में so it was not it was not a 1 day or 2 day plan back in 2017 when I started my college so it was a plan right बट हुँ, देन हमारे पास सबके पास एक प्लान होता है बट प्लान के साथ साथ ना हमारे को पता नहीं होता कैसे एग्जीक्यूट करना I motivated one of my junior. So his हुँ, book is also there. Tushar, you must be knowing, right? Tushar's book is there, right? So मैंने उस मेरी उसके साथ बात हुई and we had a some sort of conversation and उसने ये वाला pitch करा idea कि अच्छा I am thinking. So I made him like मैंने कहा just go for it, right? So I हुँ, motivated him and he wrote a book and after that just the whole book thing he published and उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिली कि ओके मेरे को भी लिखना चाहिए एंड उसके हुँ, भी 1.5 साल बाद मैंने सोचा कि चलो मैं हुँ, लिखता हूँ and that's how it just happened right but it was a kind of very surreal thing so from 2017 I was having a plan 2018 19 20 so it's not a 1 or 2 month or 3 month plan so it was whole some year 4 years of the college then 2.5 years of the job thing so kind of like six year the whole journey it was a planned journey but not an executed one so yeah it took या but honestly when I started writing the book now so it took me around 6 7 months in order to complete the whole frame right yeah, because I want to मैं ये सोचता था कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा सा डेप्थ में जाए राइट इट शुड नॉट बी लाइक कि बस तुमने कर दिया है ठीक है सो फॉर दैट डेप्थ एंड फॉर वेरी इंट्रेंसिक क्वालिटीज आई जस्ट मेरे को जस्ट फ्रेम रेडी करने में 3.5 months लगे थे so yes हुँ, that's how it just got happened and the next 3.5 months and the other months so it just concluded in 6 to 7 months around yeah so that's our whole plan. रियल लाइफ में क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे? मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपका प्लान बना फिर कि भाई बुक लिखनी है? मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार एक बुक लिखने के लिए, एक बुक में समेटने के लिए इतना सब कुछ, बंदे को अंदर बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी आग, बहुत सारी एक मोमेंट्स होती हैं जो अंदर के भर जाते हैं, जो बंदा बुक में उतार देता है, तो कुछ तो हुआ होगा?
तो वो हम जानना चाहते हैं। आई मीन ओके सो ऑनेस्टली मेरे पास कुछ मेरी कोई ऐसी पर्सनल स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, ठीक है? सो इट्स यू नो आई ऑलवेज से दैट आई एम काइंड ऑफ अ प्रिविलेज वन एंड मेरे कुछ ऐसे पर्सनल स्ट्रगल्स नहीं है इन इन माय लाइफ एंड आई हैवंट इवन ऑब्जर्व्ड अभी तक कभी कि आई एम लाइक सफरिंग फ्रॉम समथिंग और आई कैन मोटिवेट ऑन बेसिस ऑफ माय पर्सनल लाइफ और माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस because it's been like people are very good with me and I'm getting all sort of love, right? And I don't have any sort of complaints and I'm pretty much grateful and shukrana towards the god that ki sab kuch acha hai, right? But not my experiences. It's been like ki there is a primary circle of you and there is a secondary circle of you as well. So in primary circle as well kya hota hai, suppose I'm connected to you, right? Your experiences are mine experiences as well, right? हुँ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सफरिंग इन अ प्रॉब्लम, सो मैं उसको सॉर्ट कर रहा हूँ तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी भी प्रॉब्लम है, राइट? हुँ, सो it's like not the direct experiences, some sort of indirect experiences. And again, people are really good with me, so I found very good people who taught me a lot of things. And वो experiences हो गए, and again not a रोना धोना kind of thing, definitely not. हुँ। बट ऐसे हैं एक्सपीरियंसेस जो रियल लाइफ में हुए हैं, जिनके साथ मैंने रिलेट किया है एंड जिनसे मैं बाहर कैसा आया हूँ, सो दैट इज वन पर्सनल फैक्टर दैट आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड इन माय बुक। एंड वो पर्सनलाइजेशन जरूर मैंने ऐड की है कि अच्छा ये वाली चीज जब होती है सो कैसे उससे तुम बाहर आ सकते हो, कैसे उससे कर सकते हो। बट यस, डेफिनेटली डेफिनेटली मुश्किल जरूर था कि इतनी सारी चीजों को समेट के एक बुक में कैसे कंसाइज फॉर्म में लिखना। हाँ, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क, आई वोंट डिसएग्री। ये बाहर निकलने वाली कौन-सी चीज़ें हैं लाइक इज़ इट ब्रेकअप्स और लाइक क्या आई है मीन कुछ बता सकते हो? कौन से ओके एक्सपीरियंसेस की सो बात? okay, so breakup. Okay, right now I'm of 25, right? We are not in the school days or we are not in the college days, right? Thinking from a very mature point of view, after 23, right? So breakups are not the one point जो तुम्हारे को genuinely hit करता है hard in your life. So there are the different things as well. There are the responsibilities, there are the families, there are the pressures, there are societal pressures, there are the n number of concepts, right? Again, उससे बाहर निकलना as in for example, like okay, so right now I am going through a phase where I am been constantly under the box of getting married, right? हुँ, Obviously when you start hitting a specific age, so it's been like कि okay, so the frame वो होने लग जाता है, am I ready for it or am I not ready for it? That's a big question, one question. Second, हुँ, मेरे को क्लैरिटी है इस पर्पस की आई एम गोइंग टू गेट along someone, right? That's the second one. And third is that is a responsibility, ठीक है? So right now I want to enjoy the things, I want to enjoy my life, I want to make trip travel and all. वो responsibility is some sort of thing जो मैं चाहता नहीं अभी आए, बट वो आ रही है बिकॉज ऑब्वियसली द टाइम इज पासिंग बाय। इससे निकलना कैसे है? इससे निकलने के दो है, नीड वर्सेस नेसेसिटी। या तो सोचो कि ये जरूरत है या बिल्कुल ही चाहिए तुम्हें, ठीक है? और इससे निकलना क्या है, तुम इसको अवॉइड करो। जब तक तुम एक चीज को सॉर्ट नहीं करते तब तक तुम उस चीज से निकल नहीं सकते, राइट? सो सॉर्ट करना इज वन पॉइंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई हैव डन अभी, सो आई गॉट अ क्लैरिटी कि अच्छा फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है? और माइट बी पॉसिबल इन माय करियर एज वेल कि मेरे को इतने टाइम तक यही करना है, उसके बाद मेरे को ये करना है, उसके बाद मेरे को ये करना है। सो देयर इज अ पिक्चर, देयर इज अ बिगर पिक्चर प्लान जो तुम उस पे अपने आप को रखते हो, सोचते हो, एग्जीक्यूट करते हो। सो जब तक तुम्हारे दिमाग में वो नहीं है, उस चीज को आप सॉर्ट नहीं कर रहे, मिट्टी पाने वाली बात तो है नहीं वैसे कि चलो हुँ, तुमने मिट्टी पा दी एंड वो पंजाबी में ना एक रहता है कि अच्छा हाउ टू सॉर्ट द थिंग्स, मिट्टी पाओ, राइट? तो मिट्टी पाओ, you can't do, right? In the real life you can do obviously कि सानू भी, मतलब हमारा तो लेना देना ही नहीं ना, मतलब आना तो वो आ ही जाएगा eventually, but it's not like that, right? You need to sort the things out, you need to see कि is it the purpose fulfilling thing or not. If you're not finding it, so there is no point. So that's how I came across a lot of things in the life, right? So yes, breakup वाला पार्ट एक आता है, बट अगेन फ्रॉम अ वेरी मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू तुम उस चीजों को ना छोड़ देते हो बिकॉज ऑब्वियसली the settlement processes, the responsibilities of the family, your parents are getting old, and all those lot of things are again a kind of responsibility to us. So those hit really hard rather than the breakup thing, right?
एंड अगेन अडल्टिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो सोच के आना बड़े हो रहे हो। क्या क्या डिफिकल्टीज फेस होती है, लाइक क्या? क्योंकि मैं तो छोटा हूँ, तो मतलब मैं सीख सकता हूँ आपसे। आई मीन अगेन डिफिकल्टीज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरे को कुछ चीज डिफिकल्ट लगती नहीं है, बट हम्म, डिफिकल्टीज एज इन कि ओके, पहले इट्स मोर और लेस कि तुम रैंडम प्लान्स बनाते थे, ठीक है? रैंडम प्लान्स एज इन यू मेड अ कॉल, नवन हमने जाना है, आई सेड ओके आई एम कमिंग, वी आर गोइंग, दैट्स इट, बिकॉज वी वर इन कॉलेज। हमारे को हम्म, इन्फॉर्म किसको करना है, हमारे को एट मैक्सिमम इन्फॉर्म किसको करना है, एट मैक्सिमम मेरे को अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, दैट्स इट। Right now it's more or less, if I want to make plan, I want to inform my parents, I want to inform some of my very closest friends as well, right? I want to inform my, you know, अगर कोई तुम्हारे साथ में कोई तुम्हारा गुड फ्रेंड है, some sort of your connection, right, your better half, your fiance or whatever, तुम्हारे को उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो वो ना पूरा एक थ्रेड हो जाता है, एंड वो हम्म, थ्रेड ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि तुम्हारे को जस्टिफाई नहीं करना, तुम्हारे को इन्फॉर्म भी करना है ना। सो इट्स मोर और लेस हम्म, यू आर टेकिंग परमिशंस ऑफ लॉट ऑफ पीपल, राइट? हम्म, बट विच इज नॉट नीडेड, यू कैन बी अ फ्री बर्ड, यू कैन बी अ बेफिक्र जोन, एंड तुम जहां मर्जी जा सकते हो। बट पॉइंट ये नहीं है, हम्म, पॉइंट ये है कि अडल्टिंग इसलिए भी हार्ड हो जाती है क्योंकि तुम्हारे पास चीजें बताई नहीं जाती कि अच्छा ऐसे, कि अच्छा 12वीं कर लो, 12वीं के बाद तुम चलो, राइट? हम्म, तुम कॉलेज कर लो, कॉलेज के बाद लाइफ सेट है, बट लाइफ हम्म, सेट ही नहीं है। हम्म, आज तक मेरे को, अभी तक मेरे को कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ सेट या सेटलमेंट का मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, दैट वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे को कभी किसी ने बताई नहीं थी, ठीक है? माय पेरेंट्स हम्म, हैडंट टोल्ड मी कि अच्छा तेरे को ये करना पड़ेगा। आई वाज हम्म, लाइक राइट नाउ ओके, अच्छा ये भी मेरे को करना है, दैट्स हाउ इट हम्म, शुड वर्क, राइट? सो ये एडल्टिंग में ये मुश्किल आ जाती है। आल्सो द बैड थिंग इज माय पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड। I can't do हम्म, anything about the aging process. I can't stop it. I can't make them okay. कि हम जैसे हमारे पहले हर साल ट्रिप बनते थे, ठीक है? राइट नाउ आई कांट फोर्स देम कि अच्छा तुम जाओ, बिकॉज ऑब्वियसली द एजिंग इज हैपनिंग, द अदर सॉर्ट ऑफ वर्क्स आर हैपनिंग। सो बहुत सारी चीजें ना कॉम्प्लिकेट हो जाती है, कम्बरसम हो जाती हैं, जटिल हो जाती है। तुम फिगर आउट भी करना चाहो, तुम्हारे से फिगर आउट ही नहीं हो पाती। सो दिस इज द बैड थिंग अबाउट adulting, दैट यू आर नॉट बीइंग टोल्ड कि अच्छा ये भी होने वाला है, बट यस ये तो होएगा, राइट? So after 12th, everything is fun. This is a bullshit concept. Stop being, making people fool around and falling into this trap कि अच्छा सब कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। स्कूलिंग तक सब अच्छा है, that what I believe. I mean कॉलेज नहीं, तक भी कॉलेज तक भी ठीक है, आई थिंक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तब आती है जब ये कॉलेज के बाद भी होता है। कह सकते हो। और ऑल्सो मतलब तुम एक अगेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे को होना है, तुम्हारे को करना है, यू नीड टू अर्न, यू नीड टू फीड योर फैमिली, you need to feed your better half. And right now it's just there are the few countries in my brain, and my parties are there, so that's only it's the wholesome picture, right? I can't think कि अच्छा I can feed a family, right? If I would be considering at 25, probably my uncles or my not my parents, but my uncles were getting married by this age, right? Got married, and they were having kids probably back in the time at 25. And right now, look at me. I mean, that's not an achievement, but I can't think of. I'm a kid. I कब करनी cannot. चाहिए मैरिज? कब कब सोचा आपने? यार सोचा क्या? मैंने, नो नो कॉन्क्रीट प्लान्स, राइट? सोच पे कुछ नहीं होता, नेवर से नेवर। एंड बस यही है। कोई एज नहीं है शुरू मैरिज करनी की। चाहिए, या फिर भगवान भरोसे छोड़ दो कि जब भगवान को जिसको लेके आना होगा लाइफ में ले आएगा। नहीं, वो इतना तो देखो एक कॉन्सेप्ट है कि राम भरोसे वाली चीज तुम कर सकते हो, बट फॉर द मैरिज कॉन्सेप्ट ना मेरे को ये नहीं लगता कि तुम्हें चीजों को राम भरोसे या भगवान भरोसे छोड़ना चाहिए। I'll tell you the biggest reason. The biggest reason is कि you are signing up for lifelong contract as in
and as an institution, right? Don't take my words into bad way. Contract as in it's a bigger institution that you are forming with a stranger as in again in arranged concept. As in the हुँ, love concept, तुम एक ऐसे बंदे के साथ एक रिलेशनशिप में जा रहे हो जो लाइफ लॉन्ग चलेगा. You can't back off. You can't take step aside. सो तुम्हारे को राम भरोसे छोड़ने से अच्छा तुम फिगर आउट कर लो कि किसके साथ करना है. बिकॉज राम हुँ, भरोसे छोड़ दिया तो फिर राम जी ने तो फिर लाके तुम्हारे को दे देनी है सीता माता. एंड तुम मर्यादा पुरुषोत्तम अगर नहीं निकले तो फिर देयर इज अ बिग क्वेश्चन. राइट, राइट. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग लाइक मस्त, मतलब उनकी शादी हो गई है, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स एंड स्टिल दे आर हुँ, नॉट रियली रिलेटेड एंड उनको पर्पस भी क्लियर नहीं है कि अच्छा व्हाई दे गॉट मैरिड. I mean, obviously, the sole purpose is the one thing, okay, to expand the family. But what other than what are your needs? Why you are getting into a relationship? Are you हुँ, emotionally healed person or are you not properly? तुमने बच्चे भी हुँ, पैदा कर दिए, but still you are not understanding there is a concept of healing behind it. If you are not हुँ, healed as a person, so there is no point कि you should produce children because तुम्हारी healings या जो तुम्हारे traumas हैं वो आगे बच्चे में transfer होते हैं, right? हुँ, So बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे को शादी से पहले सोचनी चाहिए. So हुँ, that's what I generally call it as a purpose or a clarity. अगर नहीं है, so stop getting doomed or fooled into the whole concept. And also make yourself very financially independent. Then only sign up for the whole thing so that you can pay the alimony right after that. पर हाँ, पर ये जैसे हीलिंग वाला कांसेप्ट है, आई थिंक हीलिंग वाला जो कांसेप्ट है, तो ये आई थिंक यार हमारे जो बड़े हैं, सपोज़ मेरे नाना जी हैं, दादाजी हैं, तो उनको क्या होता है कि यार बच्चे की जल्दी मैरिज हो जाए। मेरे साथ तो है मतलब मेरे साथ है, वो कहेंगे अगले साल ही मैरिज कर ले और अगले साल तू ही बच्चे कर ले। उनको नहीं है इमोशनल हीलिंग का जितना आपने ये कांसेप्ट्स बताए, ये आई थिंक ज़ेन ये बट हाँ, जेनजी मॉडर्न हम्म, मैं इसको ना जेनजी कॉन्सेप्ट नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि ओके, मैं I'll ask you one question, right? हुँ, तुम्हें अभी तक तुमने सपोज एक स्कूल में तुम पढ़े हो जहाँ पे तुम्हारे को काउंटिंग सिखाई है 1 to 10. ठीक है. हुँ, तुम्हारे सामने 11th एलिफेंट आता है. ठीक है. तुम 11th हुँ, एलिफेंट को क्या बोलोगे? 11th बोलोगे या 1 बोलोगे? 1 मेरे को 10 तक आती है ना मतलब हाँ। So similarly, if I would be taking example of my grandfathers, grandparents, हुँ, उनके टाइम में जितना उनको सिखाया गया, उनको उतना ही आता है. ठीक है. उनको हुँ, ट्रॉमास की कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको हीलिंग्स की कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको जेंजी कॉन्सेप्ट्स नहीं पता कि स्ले करना क्या होता है, राइट? हुँ, ऑल दोस जेंजी लिंगोस क्या होते हैं, उनको नहीं पता. ना उन्होंने सीखा, ना उनको समझ आता. उनको ये पता है कि विधि का विधान ये है, नियम ऐसे है, सोसाइटी ऐसे चलती है, ऐसे ही होना चाहिए. दे आर जस्ट टेलिंग यू कि ऐसे होता है, तुम ऐसे कर लो. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आल्सो डूइंग द सेम. मेरे को जब हीलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया, मैंने किसी और को आगे फॉरवर्ड किया, भाई ऐसे होता है, तुम ऐसे करो. उसने आगे किसी और को फॉरवर्ड किया. दिस इज व्हाट दैट व्हाट वी कॉल इट एज एन एनलाइटनमेंट, और थोड़ा सा ज्यादा समझ आना. तुम अपने बारे में जब इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तुम्हारे को समझ आता है कि मैं इस पॉइंट पे या इस मोमेंट पे एग्रेसिव होता हूँ, मेरे को हुँ, अपनी ये आदत सुधारनी है. दैट्स द बेसिक हीलिंग, राइट? हुँ, राइट नाउ आई कांट बी लाइक कि ओके ठीक है, मेरा बच्चा आया है सामने, मेरे मेरे साथ ऊपर ऊंची आवाज में बोल रहा है, मैं उसको आई कांट डू इट. मैं उसका थॉट प्रोसेस समझूंगा कि वो इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है, वो रिटेलिएट क्यों कर रहा है. ठीक है. हुँ, तो वो सब क्या है, वो इसलिए है क्योंकि हमारे को इतनी अच्छी एजुकेशन हमारे पेरेंट्स ने दी है ताकि हम इतना भी सोच सकें. यू नो हुँ, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ कर्मा. कर्मा के कॉन्सेप्ट में हम सब बिलीव करते हैं. हुँ, बट हैव यू एवर थॉट कि देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा एज वेल इन द थॉट प्रोसेस में भी. सपोज अगर मैं किसी के लिए अच्छा सोच रहा हूँ ना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी एज अ गुड कर्मा. दैट हुँ, डजंट मीन कि अगर सपोज मेरे पास यार देने के लिए 50 रुपए नहीं है, ठीक है, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे को देने चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. जरूरी हुँ, नहीं है कि मेरे को 50 नहीं है, 100 नहीं है, या मेरे पास आज नहीं है पैसे मेरे को देने हैं, बट मेरे दिमाग में है कि ये करना चाहिए. दिस इज अ गुड हुँ, डीड. दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गुड कर्मा. सो हुँ, व्हाट इज दैट, वो हीलिंग प्रोसेस अगेन, दैट्स नॉट अ गुड और बैड थिंग, दैट्स जस्ट अ प्रोसेस. तुम्हारे को समझ आता है, बहुत बढ़िया. नहीं आता, थम्स डाउन, तुम कर लो. हुँ,
जब तुम आगे फिगर आउट करोगे बाद में भी तो आगे बच्चे, आजकल के बच्चे, व्हाई व्हाई पीपल आर नॉट साइनिंग अप फॉर द थिंक ऑफ मैरिज, हुँ, दिस इज अ मेजर रीजन है ना, बिकॉज दे आर एजुकेटेड, दे अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, उनको समझ आती है कि अच्छा ऐसी चीजें काम करती हैं, हुँ, उनको समझ आता है कि why people, why the parents are all time quarreling and all time fighting with themselves, and उनके relationships इतने strong क्यों नहीं है, why they can't share an emotional bond with each other, because they right now they understand कि अच्छा ऐसी चीज होती है। सो वो वाली चीज है कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे हम उस चीज को फिगर आउट कर रहे हैं, कैसे हम उस चीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड इवन इन माई बुक एज वेल, you cannot हुँ, even imagine this, the whole concept is involved, like हुँ, again giving you a very big gist about my book, and it's a kind of obviously there is a marriage concept as well which involved marriage is involved, there is a separation involved, there is the fights and quarrels are involved. So yes, I have included it because that is need of an hour. Need of an hour means we need to address this issue, that why it is happening. We cannot हुँ, again do or delve into the कि चलो मिटे पाओ छोड़ो, ये तो होता रहता है। It is not like that. It is happening because the things are happening. ये ऐसा नहीं है हुँ, कि चलो आजकल हमारे को ना अगेन why people are signing up for you know looking for a psychologist, looking for marriage counselors, because it is need right now. It is not like कि ठीक है हो रहा है चल रहा है कर रहे हैं, no, हुँ, just go for a counselor, just seek the help if you are not finding any sort of thing, or if you're finding your marriage ending it up in a bad manner or something, so you can see, you can seek the help. That's the whole thing. Again, I'm not a married man, I cannot say much things, but yes, this is the thing, these are the things which are happening, so we need to figure out. और ये सेपरेशन वाला तो आज आजकल ज़्यादा हो रहा है बल्कि इवन आई एम मतलब मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ कि पूरी की पूरी मर्द वाली जाति वो डरी हुई है मैरिज करने से। आई डोंट नो Okay. आजकल बढ़ रहे हैं। Okay, two reasons as in पहले डर, डर भी नहीं, आई वुड से रिस्पेक्ट, ठीक है, पहले हुँ, रिस्पेक्ट होती थी, दोनों दोनों को एज ए, मेरे को पता है कि अगर मैं पहले हुँ, वाले जमाने में होता, मेरे को पता है मैंने करा है, और अगर मैं बैक ऑफ कर रहा हूँ, मेरे घर वाले हुँ, मेरे को गालियां देंगे, गालियां एज इन हुँ, मतलब कच्चा खा देंगे। हुँ, सिमिलरली गर्ल को भी ये वाली चीज होती थी कि समथिंग इज हैपनिंग, वी नीड टू सॉर्ट द थिंग रादर देन मैं एंड अप कर दूं ये चीजों को, ये ठीक है। हुँ, So right now what's happening, there is a bit of ego clash. Ego clash means मैं तो नहीं करने वाला, वो तो नहीं करने वाली, अब कर लो। अब वो कर लो वाला जब आता है तो वो कौन आता है, वो कोई भी नहीं कर सकता, ना वो मैं कर रहा ना वो मेरे सामने वाले कर रही, सो करेगा कौन? Let's sign up for divorce. हुँ, That's what we call it as separate. And आजकल कोई सॉर्ट करना भी नहीं चाह रहा बिकॉज कि मेरे साथ हो रहा है ना बुरा, ठीक है, हुँ, मैं क्यों आगे आगे सॉरी बोलूं, वो भी तो बोल सकता है, वो भी तो बोल सकती है। सो सिमिलरली इट्स हैपनिंग वाइस वर्सा, राइट, जितना तुम्हारे को लग रहा है कि अच्छा बुरा हो रहा है या हो रहा होगा किसी पर, सामने वाले को भी हुँ, उतना ही लग रहा है कि मेरे साथ भी उतना ही बुरा हो रहा है या हो रहा होगा किसी पर। So what is happening? It's just an ego clash. And kudos to the people who are getting separated. At least they are not taking the bullshit on their mental health, and if they're finding the way out of it. And surprisingly, like I'm finding lot of people who are being bold and who are being happy after getting separated, because there is no point to feed the dead plants when the relationship is not as good as, or as nurturing as it possible. So there is no point to feed the water, there is no point to give the care, emotions and all. Again, हुँ, it's a lifelong concept. तुम इतनी हुँ, बड़ी जिंदगी के लिए जा रहे हो, एंड यू आर विद समवन विद whom you can't love, whom you cannot be with, or somewhere or somewhere, so there is no point. So I believe separation is cool आई if थिंक you are not सेपरेशन finding. डाइवोर्स इज़ गुड और कुछ केसेज़ ऐसे भी हैं जो लटके रहते हैं, उन पे क्या कहोगे? ना ये डाइवोर्स देता, ना ये डाइवोर्स देती। अगेन वही है ना कि सालों की लटकाओ, मतलब वो मतलब कॉन्सेप्ट दूसरा वही है ना, क्लैरिटी, ये क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है ना, मतलब मेरे को किसी को हैरेस करना है, मेरे पास तरीका यही है, लटकाओ। हुँ, इस पे
यू नो कभी भी ना क्लैरिटी आ भी नहीं सकती। क्लैरिटी एज़ इन कि मेरे को पता है मैंने नहीं देना, मेरे को पता है इसने नहीं देना। बट व्हाट यू आर डूइंग? हुँ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। यू आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर। यू आर जस्ट बीइंग a kind of a burden to each other. So stop हुँ, being you know idiotic about it कि मैंने नहीं देना, उसने नहीं देना। What's the point of it? मतलब तुम ना दे के भी क्या ही कर रहे हो? You're living separated, right? You can live separate then. Then make your concept as an open relationship कि अच्छा हम मतलब किसी के साथ भी कर सकते हैं, राइट? या हम किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो हुँ। इधर मेक इट इन दैट मैनर, मतलब बट डोंट डोंट से लाइक दैट कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा हो रहा है एंड मेरे को ही ये वाली चीज नहीं करनी है, उसको ये वाली चीज नहीं करनी है। यू कैन एक्ट लाइक अ मैच्योर पीपल कि अगेन आई फ्री डू नहीं कंसिडर इट एज अ बर्डन। फ्री नहीं करना चाहते वो अगले बंदे अगर फ्री हो गया तो वो तो आगे बढ़ जाएगा और वो किसी के साथ भी कर सकता है आगे। यार ये यही तो क्रैब मेंटालिटी है। क्रैब्स का जनरली क्या केस होता है? सो व्हेन वन क्रैब इज ट्राइंग अप क्लाइंब अप द स्टेयर्स और क्लाइंब अप अ वॉल, राइट? सो उसके साथ दूसरे क्रैब का क्या रहता है कि उसके टांग पकड़ के उसको खींचो। हुँ, रादर उसका क्या कॉन्सेप्ट है? उसका कॉन्सेप्ट ये है वो टांग पकड़ के जैसे वो ऊपर जा रहा है कि मैं भी एक सपोर्ट लेके ऊपर चला जाऊं। बट हुँ, व्हाट दे डू, वो उनको पुल कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज अ क्रैब मेंटालिटी ना, कि तुम ना आगे बढ़ रहे हैं ना उसको बढ़ने दे रहे। तुमने वहीं पर हुँ, स्टक रहने रहो, तुम सामने वाले को आगे बढ़ने दे सकते हो, दो। बट देयर इज नो पॉइंट। मतलब अगेन कॉन्सेप्ट ही वेग है, बहुत ज्यादा अनक्लियर है कि तुम रोक ही क्यों रहे हो, रुक ही क्यों रहे हो। अगेन बहुत सारी इसके पीछे मैलिशियस एक्टिविटीज बहुत सारी है। अगर आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ द केसेस हु आर डूइंग द सेम थिंग एंड इसके पीछे की चीजें बहुत रिडिकुलस एंड हिलेरियस हैं कि हमारे को हुँ, अगर हम ऐसा करेंगे, अगेन दोज आर द थिंग्स व्हिच आर बीन सजेस्टेड बाय एडवोकेट्स कि तुम हुँ, ऐसे करो, तुम अभी मत दो, तुम्हारे को ये मिल सकता है, तुम्हें ये मिल सकता हुँ, है। आर यू गेटिंग द थिंग? इट इज पुटिंग अ टोल इन योर मेंटल हेल्थ कि ठीक है हुँ, तुम्हारे को मिल सकता है। यू कैन गेट द मटेरियलिज्म, यू कैन गेट द मनी, यू कैन गेट द बिग एलिमेंट्स और समथिंग और व्हाटएवर द थिंग है। बट व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर मेकिंग योर लाइफ क्रास। दैट्स हुँ। वेरी बैड। लाइफ में रादर पर्पज़ नहीं होता पर्पस तो आई एम सॉरी, कम अगेन। पर्पज़ नहीं होता ना उनकी लाइफ में। अगर पर्पज़ हो तो वो उस चीज़ का पर्पस मेंटल होता हेल्थ तो वो नहीं, पर्पस होता तो वो अपने रिलेशनशिप को भी चला ही लेते ना। हुँ, अगर वो यहाँ तक आए हैं सो एक पर्पस और क्लैरिटी एक उनके पास होगी ना कि अच्छा ये नहीं चल सकता, ठीक है। हुँ, सो वो जब नहीं चल सकता सो फिर उसके बाद बंदा ये करता है ना कि चल ठीक है अब चल तो रहा ही नहीं है, सो लेट्स साइन अप फॉर एंडिंग इट अप, राइट? सो पर्पस होता तो उनका रिलेशनशिप ऐसे आगे बढ़ता कि अब मेरे पास कुछ पर्पस है तो मैं उस चीज को चलाऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास है ही नहीं तो मैं उस चीज को करके भी क्या ही कर लूंगा, राइट? पर हाँ, सो दैट बच्चों में दैट तो इज द मेजर रीजन व्हाई। प्लीज। बच्चे तो अफ़ेक्ट होते हैं आई थिंक। बच्चों का पर्पज़ होना चाहिए ना दैट्स अ बिग पर्पज़ आई थिंक पेरेंट्स का। मैरिज का ही ये आई पर्पस है। नहीं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आई थिंक उन्होंने सोचा है, उन्हें हमारी जो मदर्स हैं उन्होंने पूरी डिवोट कर दिया अपनी लाइफ़ को, चाहे उन्होंने बहुत कुछ गलत भी सहा हो। दे हैव डिवोटेड देयर लाइव्स टू ऑल मेन एंड उनका पर्पज़ ये शायद बच्चों का होगा, उनका खुद का पर्पज़ नहीं है कि हमको ये पहनना है, हमको नो, ये अचीव करना है, पैसा no, 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 no. ओके। सो दो यहाँ पे सेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। दो सेक्ट्स एज इन डिवाइड कैसे होते हैं? देयर इज अ पर्पस एंड देयर इज अ चॉइस एज वेल, ठीक है। पर्पस आई वोंट से कि अच्छा उनका पर्पस यही रहा है, ये यही रहा होगा, ये यही उनको सिखाया गया करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। समटाइम्स मदर साइन अप फॉर मदरहुड इज itself a bigger and the great concept. आई वोंट से हुँ, कि नहीं यार दे आर डूइंग बैड थिंग, नहीं यार ये चीज वो गलत कर रही है, दे आर सपोर्टिंग अस। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। दे आर डूइंग बिकॉज दे लव टू डू दीज थिंग। जो मदरहुड का कॉन्सेप्ट है, जो मदरहुड का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी एंड राइट नाउ दे आर रिग्रेटिंग अबाउट इट कि हमने क्यों करा, ऐसा क्या करा है, या उन्होंने अपने पैशंस को छोड़ा, ये छोड़ा। इट कैन बी अ चॉइस। Choice as in, suppose if again, parenting is a choice. Parenting is a choice means out of the two parent, one need to get the finances done and one need to get the emotions done, right? Either of them can choose any of them, right? If father is making themselves up for devoting the whole life into the emotional building of a child, perfect. I won't be saying कि ये bad concept है,
If mother is signing up for the finances and all, it's a good concept. But हुँ, again, motherhood का एक और जो concept आ जाता है, why we are, you know, why our mothers are being treated कि उन्होंने अपनी life ऐसे कर दी वैसे कर दी है. No, that is not the one point. They have signed up for it हुँ, in a form of responsibility as well, but that's हुँ, the choice. That's the choice they have opted from their hearts. It is हुँ, not an easy job, Mayank. It is not an easy job. I have seen a lot of mothers, sacrificing a lot of things, sacrificing their hobbies, sacrificing their passion. But what exactly they are doing? They are doing more than that. More than that means, again, I can bow my hand and, join my hand and bow my head in front of them, because it's a very हुँ, noble thing they are doing. We cannot equate somebody's job, we cannot equate somebody's any sort of thing to the motherhood. हुँ, It is very very different concept. ये हम equate ही नहीं कर सकते, ये हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है. मतलब mothers again, very very different, and the, you know जी, I cannot even like put my words into it. It is very हाँ, difficult, it is very क्योंकि एक difficult process. है ना कि यार मतलब जो बॉय है वो छोड़ देता है, बट मदर को तो सँभालना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। इवन वो सेपरेट हो ही गए, तो उनको कहीं न कहीं दबना पड़ भी जाता है आई थिंक वुमेन को। इन पास्ट वी हैव सीन आई थिंक। तो आज क्या नहीं हो रहा No, no, it depends, it depends, it depends. नहीं पर Again, करना पड़ा यार। the opinions are different, right? It depends. करना पड़ता है, करना पड़ रहा है. Again, you can go for the custody cases, right? I won't be saying कि अगर मतलब I have seen a lot of cases into which the mother said no कि I won't be taking care of the child, and fathers are doing it. And there are the cases in front of mine. I have seen it from my legit eyes. So उसमें हुँ, mother said, like legit said कि okay, I'm not be taking care of the child. That's fine. Will I be saying that they are the bad mothers? No. हुँ, हुँ। So again, it's a और very आज ये चलता है debatable concept. कि शादी इज़ नॉट अ नेसेसरी, इट्स एन ऑप्शन, इट्स एन चॉइस। Every from it's not आजकल चल रहा है मयंक. It's from way long time. It's a choice. It's an option, obviously. मतलब what? हुँ, Okay, let me ask you, what is the one purpose of doing marriage other than पर expanding your family? क्या पर्पज़ है? पता नहीं यार। नहीं You can पता। take 2 minutes, you can take 3 minutes, you can take even 5 minutes to get along the purpose. एक और जो पर्पज़ पर्पस आता है, जो एक और पर्पस जो एक और आता है, I'll tell you one more very hilarious purpose कि हमारे पेरेंट्स के बाद कौन होगा? कोई तो होना हाँ, चाहिए ना जो हमें को हाँ, सपोर्ट करे, यही साथ रहे. हाँ, यही पर्पस है. ये पर्पस हाँ, नहीं पर है. हिलेरियस क्यों बोला आपने फिर इसको? हिलेरियस ही है ना. ओके, आई मीन, let me keep it very simple. How can another person completes you to the fullest? Nobody can complete me. I know about myself more than anyone. I know how to lead my life. Nobody can tell me कि अच्छा ऐसा होएगा, अच्छा ऐसा होएगा. जितनी बात रहती इमोशनल इंटीमेसी की, वो भी तुम्हें 1% पे जाकर अपने साथ ही ज्यादा आती है, rather than तुम किसी और से वो करके. हुँ, I don't know हुँ, about lot of people. I find myself really being into that zone कि जहाँ पे मेरे को अपना नेचर पता है कि हुँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा. सो इवन मेरी बंदी भी मेरे को फिगर आउट नहीं कर पाएगी. हुँ, वो रिएक्शंस मेरे को पता है, वो मेरे हैं, राइट. उसको हुँ, भी 5-6 साल लगेंगे कंप्लीटली मेरे को समझने में, राइट. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग विद समवन? अगेन, आई एम नॉट हेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप और तुम शादी क्यों कर रहे हो, ये सब. आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज. आई एम जस्ट सेइंग इट इज एन ऑप्शन, इट वाज एन ऑप्शन, इट विल बी एन ऑप्शन. ये था, नहीं पर है, वो रहेगा. हुँ, नहीं हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी से सोचो ना कि वो क्या बोलते हैं कि यार जब हम नहीं रहेंगे तो एक तो रोटी बनाने वाला कोई हो, रोटी बनाने वाला नहीं यार ये मैं छोटी बात बोल दूँगा बट काइंड ऑफ You जब आप should बीमार get it. नहीं जब आप बीमार हो रहे हो तो कोई तो होगा आपकी केयर करने के लिए। Your friends can be there. यार फ्रेंड्स डू यू थिंक यार कितने नहीं 10 में हर कोई बिज़ी है यार अपनी लाइफ़ में।
नो, बिजी होना, क्या? अवेलेबल होना डिफरेंट है। हुँ, मैं बिजी हूँ बट आई कैन बी अवेलेबल फॉर माई फ्रेंड्स। इफ माई फ्रेंड इज गोना कॉल मी कि अच्छा नमन मेरे को ये इशू है, क्या मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगा? क्या मैं उसके पास नहीं जाऊंगा? ऑब्वियसली हुँ, इफ ही इज इन इंडिया एंड मेरे घर के पास रहता है तो हाँ यार। एंड वाइफ ये मेकिंग आवरसेल्व्स कि अच्छा कि हाँ जब तुम्हारी तबीयत खराब है तब तुम्हारे को चाहिए कोई टेक केयर करने। भाई तुम हाँ, अपनी टेक केयर खुद कर सकते हो ना। तुम अपने आप को ऐसा बना सकते हो ना, जरूरी नहीं है यार मतलब कि हर टाइम पे तुम्हें किसी की जरूरत हो। अगेन बहुत अलग नहीं, कॉन्सेप्ट है कि तुम इस चीज को कैसे फिगर आउट करते हो। ठीक है, फिगर आउट नहीं एज मैं इन हेल्थ की बात कर रहा हूँ सर मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ कि मतलब हेल्थ जब खराब होती है ना तब बंदा कहीं का नहीं रहता। मतलब व्हेन हेल्थ इज़ ऑलराइट तो वो बंदा 100 प्रॉब्लम से फाइट कर जाएगा। बट जब एक हेल्थ वाला पॉइंट आता है तो यू नीड समवन यू कांट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। नो नो हु इज समवन यार नेसेसरी अभी तो व्हाई? मेरे लिए तो मेरी फैमिली होगी काइंड ऑफ यू कैन से बिकॉज़ मैंने ये फेस किया है। मैं अकेला बीमार हुआ हूँ तो मैंने फेस किया तब मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ पे इतना डिबेट कर रहा नहीं, दैट्स फाइन फॉर यू, इट्स योर फैमिली ना, एज ऑफ नाउ, राइट? हूँ। हाँ, एज़ ओवर द पीरियड यू कैन चूज योर फैमिली एज वेल। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ अ चूजन फैमिली ना। हाँ, यार एक फैमिली है जो तुम्हें मिलती है, एक फैमिली है जो तुम बनाते हो। ठीक है, you can हुँ, choose your family, you can choose your friends who can be good in terms of being a brother, in terms of being your cousins can be there. That doesn't mean कि अच्छा तुम्हारे को मतलब हर टाइम पे एक शादी का कॉन्सेप्ट बीच में लेके आना कि अच्छा शादी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट पॉसिबल हुँ, कभी तुम बीमार ही ना पड़ो। हाउ कैन हुँ, यू प्रिडिक्ट कि अच्छा ये होने पर ये होएगा? आई मीन हुँ, नाउ यू आर मेकिंग शादी की अच्छा शादी होनी चाहिए, वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कोई तुम्हारी टेक केयर करे, कोई तुम्हारा ऐसा करे, कोई तुम्हारा वैसा करे। सिमिलरली बट मतलब इमेजिन तुम्हारी लाइफ में अच्छा तुम अभी ये सोच के चल रहे हो कि अच्छा शादी के लिए की शादी क्यों होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी टेक केयर करने के इन द मेडिकल टर्म्स तुम्हारी टेक केयर। क्या पता तुम्हारी जिंदगी में कभी मेडिकल टर्म्स या मेडिकल यू नो कुछ ऐसी कंडीशन आए ना, सर्कमस्टेंसेस आए ना, तो तुम सोचते रहोगे भाई हमने शादी क्यों करी, हमारा तो पर्पस यही था शादी करने का। अब तो हमारा पर्पस वेस्ट हो गया, शिट। नहीं यार मैं अपने पेरेंट्स की वर्ड्स बोल रहा हूँ। मैं मोस्ट पेरेंट्स के वर्ड्स बोल रहा हूँ आपके सामने। मैं अग्री कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा तुम्हें ना, मैं तुम्हारे ना मैं पेरेंट्स की उसको वो कर रहा हूँ हुँ, डिसीजन को क्वेश्चन कि ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। बिकॉज ऑलमोस्ट दे आर राइट। वो कभी हुँ, गलत हो ही नहीं सकते ना। हुँ, मतलब इवेंचुअली व्हाट इट हैपेंस कि अच्छा दे हुँ, आस्क मी वेरी वेरी फनी इंसिडेंट्स कि अच्छा मैंने कहा कि अच्छा अभी आई एम टेकिंग लाइक फ्यू इयर्स एंड ऑल, सो हुँ, कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग एंड ऑल। सो हुँ, वो कहते बोलते मैंने क्या विल लेट यू नो कि बोलते आर यू सीइंग समवन और समवन। मैंने क्या अगेन नॉट श्योर एंड द थिंग्स इज बोलते कि हुँ, अच्छा चल ठीक है ओके। बोलते फिर कब करनी है? मैंने कहा मतलब आई एम टेलिंग यू आई एम गिविंग यू कि अच्छा आई एम लिटिल बिट नॉट इन द जोन कि अच्छा अभी मैं समझ पाऊँ कि क्या है क्या है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन कब करनी है? मैंने कहा आई एम हुँ, गिविंग यू द बिगर हिंट ना कि अभी पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, हुँ, व्हाई इवन यू आर मेकिंग इट कि अच्छा अभी है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, देयर इज नो हुँ, पॉइंट, राइट? सो वो हुँ, कभी गलत नहीं हो सकते। गलत ऑलवेज कौन है? हम। you can't question a parent कि अच्छा ऐसे नो, दे आर एब्सोल्युटली राइट इन देयर पॉइंट्स। उनका जो पर्सपेक्टिव है उनको है ना। हाँ, I mean, even I can't ignore my parents कि अच्छा they are saying कि अच्छा okay I understood. What next? करना मेरे को है, होनी मेरी है, करना मेरे को अपने अकॉर्डिंग है, बट अच्छा सुन लिया जी, ओके डन। या रोमांटिक फिक्शन क्यों लिखी? मतलब हाउ यू डिसाइडेड कि रोमांटिक फिक्शन ही लिखनी है मेरे को? कहाँ से डिसाइड हुआ? ओके, रोमांटिक फिक्शन ने क्यों लिखी? हाँ, रोमांटिक फिक्शन आई हैवंट एक्सपीरियंस द रोमांस, यू नो एक जो टिपिकल एक फेरी टेल एक एवरीथिंग शुड बी पिंक एंड ब्लू वाला कॉन्सेप्ट और रोमांस है, आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट। हुँ, But the one thing I really think of कि romantic fiction it is not a fairy tale romance, right? It is हुँ, a romance of a very mature people. It is a romance when you actually fall in love with someone and you let them go. It is, हुँ, even in my book, if I can make you show. So this is how the book looks like.
Even in my book, हुँ, I have mentioned it that it is not a tale of a perfect ending, right? It is the tale of, if you can read it and if I can make it zoom, हुँ, it is not a tale of perfect endings, means कि यहाँ पे सब कुछ गुड नहीं हो रहा. हुँ, Everything is just getting parted, everyone is just getting, out of the boxes, उनके हुँ, relationships टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं. So it's not the romance what you are thinking of. Romance can be anything. उनके past memories भी romance है, right? हुँ, So that's how I understood the concept of romance as कि might be possible it can make people feel कि अच्छा this तो not can be categorized as romance, right? But romance, what I believe, romantic चीज क्या होता है? Romantic चीज ये होती है when even you are getting separated, तुम्हारी जो पास्ट की मेमोरीज है तुम उसको एक यू नो बॉक्स में डालो, उसको लॉक करो एंड उसको बंद कर दो, रादर देन तुम आज अपने बैड एक्सपीरियंसेस को काउंट करो, अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस को भी काउंट करके तुम अच्छी मेमोरीज में भी डेल्व इन करके रह सकते हो. सो फॉर मी हुँ. रोमांस कैन बी दैट थिंग एज वेल. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. एंड मेरे को खुद भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने कैसे लिख दी रोमांटिक फिक्शन, बट यस आई हैव रिटन इट. सो दैट्स बट और बहुत सारे सैड मोमेंट्स होंगे आई थिंक। नो 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 ऐसा नो, कि नहीं नहीं नहीं. अगेन बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि बहुत सारे सैड मोमेंट्स हैं. नहीं, बिल्कुल ये सैड मोमेंट्स की नहीं है बुक. सैड मोमेंट हैं, मोमेंट्स. आई वॉन्ट बी सेइंग कि यहाँ पे सब कुछ रोना धोना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज डूइंग रियली गुड इन देयर लाइफ. एंड ऑल्सो जब चीज बैड हुई भी, उन्होंने हैंडल बहुत अच्छे तरीके से किया कि उनको पढ़ के भी कभी ऐसा नहीं होएगा तुम्हें कि कि ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ एंड ऑल, राइट. यू विल आल्सो फील कि नहीं, दिस इज द बेस्ट थिंग दे हैव डन. एंड एट द एंड ऑफ द बुक यू विल फाइंड कि जो हो रहा था वो तो हुआ ही है, बट जो हुँ, हुआ लास्ट में, ये क्या हो हुँ, गया. सो जो लास्ट चैप्टर का नाम है, लास्ट चैप्टर का नाम भी मास्टर स्ट्रोक है. इफ हुँ, यू विल रीड इट ना, सो यू विल फिगर आउट कि भाई ये तो पूरी बुक हमने जो पढ़ी और लास्ट में हुँ. जो हुआ वो क्या हो गया. सो लास्ट वाला चैप्टर इज द बेस्ट चैप्टर दैट आई बिलीव कि जो मेरे को लगता है वो है. क्योंकि लास्ट चैप्टर ऐसा है कि यू विल फील कि अच्छा ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है. नहीं बट आपने बोला ना बहुत सारे पार्टीशंस हुए एंड आई थिंक Partitions are, again, I won't believe कि partitions हर बार ही रोना धोना होता है, sad moments होते हैं. No, partition ट्रू can लव में be. नहीं. ट्रू लव में अगर partition हो रहा है ना, I will mark it and I can say it. अगर ट्रू लव में partition हो रहा है ना, दोनों खुश होंगे, दोनों खुश होंगे. ओ Because they हुँ, know कि when they can't be together, हुँ, एंड अगर वो अलग होके एक दूसरे की अच्छाइयाँ काउंट कर सकते हैं, अगर वो एक दूसरे को ब्लेस कर सकते हैं, सो उनका अलग हो जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बीइंग टुगेदर. If being together can make somebody you know chemical reaction exothermic हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्माहट हो जाती है, एंड तुम एजिटेटेड हो जाते हो, एग्रेसिव होते हो, एंड तुम्हारी सारी नेगेटिव क्वालिटीज आ जाती हैं. सो हुँ, तुम सेपरेट रह के तुम एक दूसरे को पीस कर सकते हो. सो दैट्स ऑल्सो द फाइन थिंग. मतलब यू कांट हग अ ट्री, राइट? हुँ, उसके लिए तुम्हारे को लंबी बाजू चाहिए, उसके लिए तुम्हारे को उतना चाहिए, बट यू कैन एडमायर अ ट्री. दैट्स हाउ इट शुड गो. हुँ. बट हमने मूवीज़ में देखा है ना ट्रू लव जब होता है तो सेपरेट जब होते हैं तो मूवीज मूवीज आर डिफरेंट, राइट. मूवी में तो मैंने ये भी देखा था कि जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज हुई थी कि मेरा कॉलेज ऐसा होना चाहिए, राइट. बट द रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट. it was more than the student of year, right? So हर एक चीज तुम्हारे को मूवी के अकॉर्डिंग नहीं मिलती, हर एक चीज लाइफ में मूवी के अकॉर्डिंग प्लान नहीं होती. मूवीज आर गुड, मूवीज आर अ गुड टाइम पास. तुम देखते हो, तुम सीखते हो, तुम भूल जाते हो, वो वहीं तक ही रहना चाहिए. एंड ऑल्सो बुक्स में भी क्या होता है, बुक्स में भी ना हर एक की कॉन्वर्जेशन बुक के साथ अपनी अलग होती है. तुमने एक बुक पढ़ी, सपोज इफ यू हैव रेड दिस बुक, तुम्हारी कॉन्वर्जेशन द फ्रेंड फेट के साथ अलग होगी, मेरी कॉन्वर्जेशन द फ्रेंड फेट के साथ अलग होगी, एंड सबका अपना अलग एक्सपीरियंस है. तुम उस हुँ, एक्सपीरियंस को ना क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तुमने ऐसा क्यों करा है, हुँ, तुमने ऐसा क्यों करा है, राइट, या हुँ, तुमने ऐसा क्यों सोचा है. ये क्वेश्चन हुँ, नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन मेरे इंटरप्रिटेशन है. मैंने इस चीज को ऐसे इंटरप्रेट किया, तुम इसी चीज को किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, एंड दैट इज फाइन. कोई रोक नहीं रहा तुम्हें.
एंड इवन इन दिस बुक एज वेल, मेरे हुँ, पास ना, जब इनका पार्टीशन एंड सेपरेशन जो हो रहा था ना, हुँ, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं इनके पार्टीशन को अगेन साथ निभाना साथिया या ये रिश्ता क्या कहलाता की तरह इतना बड़ा चैप्टर की तरह एक्सप्लेन करूँ, या मैं इसको वेरी कंसाइज़ फॉर्म में एक्सप्लेन करूँ। सो आई हैव चोज़न द हुँ, लैटर ऑप्शन कि मेरे को कंसाइज़ फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। मैंने कंसाइज़ फॉर्म में एक्सप्लेन किया, बट उसमें मैंने रूम फॉर इंटरप्रिटेशंस रखा है। तुम इस चीज़ हुँ, को जैसे मर्ज़ी इंटरप्रेट करो, वो तुम्हारे स्किल्स हैं कि तुम एक इस सेपरेशन को कैसे सोच रहे हो, तुम इस चीज़ को कैसे कर रहे हो, तुम इसको सही हुँ, लेते हो, गलत लेते हो, ये तेरी और तुम्हारे बुक के बीच की कन्वर्सेशन है। और मैं इस चीज़ को कैसे ले रहा हूँ, मेरे और मेरी बुक की कन्वर्सेशन है। एंड दिस इज़ व्हाई आई ऑलवेज़ बिलीव कि हर एक ऑथर को एक स्पेस फॉर ओपन कन्वर्सेशंस छोड़ना चाहिए, कि तुम इस चीज़ को कैसे कर रहे हो। दिवाली फॉर मी कैन बी द बिगेस्ट फेस्टिवल, बट व्हेन हुँ, इट कम्स टू होली, होली गिव्स यू कि नहीं भाई कलर लगाना है, नहीं रंग लगाना है, नहीं ये करना है। बट ऑन द सेम टाइम मैं दिवाली को भूल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे पटाखे भी जलाने हैं, वो ये भी करना है। तो व्हाट इज़ इट? वो मेरी इंटरप्रिटेशन है, मैं इस चीज़ को कैसे लेता हूँ। फॉर सम हुँ, पीपल दशहरा इज़, ओ भाई दशहरा है, हमारे को ये करना है, वो करना है। दैट इज़ वन फेस्टिवल। अगेन फॉर सम हुँ। पीपल ओणम कैन बी द वन फेस्टिवल, जिसमें उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें उनको ज़्यादा फ़ील होता है, उनको उनके इमोशंस कनेक्टेड है। सो हर एक चीज़ के लिए, हर एक जन के लिए अपना अलग इंटरप्रिटेशंस होती हैं, अपनी अलग चीज़ें होती हैं। एंड बीइंग एन ऑथर, नाउ आई कैन क्लेम आई एम एन ऑथर। सो बीइंग एन ऑथर आई कैन से कि रूम फॉर इंटरप्रिटेशंस आर इज़ द बेस्ट एंड गुड कांसेप्ट। इट शुड बी देयर। अब ये बताओ कि अगर किसी यूथ को, ऑडियंस को, किसी बच्चे को या किसी को भी लिखनी है तो क्या प्रोसीजर होता है? पब्लिश मतलब सोच से लेके, लिखने से लेके पब्लिश कराने तक एक बार बता दीजिए? ओके, बेसिकली व्हाट यू रियली नीड टू फिगर आउट कि तुम्हारे को कैटेगरी कौन सी लिखनी है, दैट्स अ वन थिंग। सेकंड, व्हेन यू आर डन विद योर राइटिंग प्रोसेस, सो राइटिंग प्रोसेस के बाद ना तुम अपने पब्लिकेशंस फिगर आउट करते हो। सो देयर आर अदर लाइक पब्लिकेशन, सपोज मैंने नोशन से करवाई, सो बहुत सारे अदर पब्लिकेशंस है, तुम उनको अपना आइडिया पिच करते हो। जैसे तुम अपना आइडिया पिच करते हो, सो व्हाट दे विल डू, दे यू जनरली सबमिट योर बुक, राइट? उनके टूल्स में जाके तुम अपनी बुक सबमिट करते हो। बुक सबमिट करने के बाद तुम्हारी बुक रिव्यू के लिए जाती है। रिव्यू करने के हुँ, बाद देयर आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, वो कवर चेक होता है, तुम्हारे बुक का कंटेंट चेक होता है, तुम्हारी फॉर्मेटिंग चेक होती है। सो ऑल दोज रिव्यूज जनरली, एक जेनरिक आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। रिव्यूज के बाद तुम्हारा एक थम्स अप आता है, एंड उसके बाद हुँ, तुम्हारी लिस्टिंग हो जाती है। सो इट्स नॉट अ बिगर बिगर थिंग, बट इट इज मोर ऑफ की जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो है तुम्हारा बैक इन द टाइम जो तुम मैन्युस्क्रिप्ट रेडी करते हो, जो तुम्हारी पूरी बुक लिख रहे होते हो, दैट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट। एंड उसके बाद तुम पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट पे पिच कर रहे हो। यू कैन पिच टू पेंगुइन एज वेल, यू कैन पिच टू यू नो बिगर बिगर पब्लिकेशंस। बट व्हाट एग्जैक्टली, तुम्हारी स्टोरी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, राइट? हुँ। So this is how the whole process. It's a generic process. That's how the process of the book, releasing happens. And ऐसे तुम बुक लिख सकते हो, एंड ऐसे तुम अपने पब्लिश कर सकते हो बुक। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं यार। पहले ये बताओ आपने जो पिक्चर्स पीछे लगा रखी हैं, उसका मीनिंग क्या है? क्यों लगा रखी हैं? Uh, it's a there is a big artist around there that's called Matt Charcoal, and उसके ना डिजाइन बहुत बहुत प्यारे हैं, ठीक है? And again, I can't afford the actual print, so I made it, download it, and I get themselves printed, because हुँ, he draws really well, and I'm kind of an art connoisseur. I love seeing art. I love spending my time in museums. So that's how it made me inspired to get along with some, and I selected fewer of the whole prints, and right now they are on my wall. Yeah. कोई स्टोरीज़ भी हैं क्या इनके पीछे? There is no story involved, but the one story is involved is whenever a person enters to my room, na, मतलब almost. So these designs are हुँ, not the perfect designs. Perfect designs as in कि मतलब तुम्हारे को कुछ ऐसा दिखे, कुछ वो हुए. If you can see, it's हुँ, a very abstract art, right? Abstract art मतलब बस बना दी थी मैं चाकू ने. हुँ, Everyone asked me कि अच्छा why you had put that all scary pictures and all. So my concept is life is not the perfect one, right? Why I had put it on my wall is the one point कि life जो perfect नहीं है, why should the pictures are, right?
हुँ, सो हर एक चीज को ना परफेक्शनिज्म में हम नहीं ला सकते. सो एवरीथिंग इज अ बिट ऑफ स्ट्रोक्स एंड बट यू कैन सी द पिक्चर, यू कैन सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बट यू कांट सी द एग्जैक्ट ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ इट. सो दैट्स व्हाट लाइफ इज. यू कैन नॉट हुँ, प्रिडिक्ट कि कल क्या होने वाला है, बट हमारे को पता है कल होने वाला है. सो इट्स दैट इज द one you know time kind of a thought process that was involved why I put that. Back in the time, I put the anime pictures हुँ, on the wall, right? So I removed the anime thing, and then I put the countries. So there is a Budapest, there is London, the हुँ, all cities are there, Dubai, all the हुँ, cities that I want to travel, Santorini. हुँ, So फिर उसको हटाया, and this is the third print that I got. हुँ, Yeah. awesome. And I can see Punjabi letters on your T-shirt, I think. Yes, yes, Yeah, yes. I इनके don't know पीछे if भी you read Punjabi. कोई मीनिंग। No, I find that this design very, very creative and very, quirky. So I picked that T-shirt and I purchased it. These are the alphabets of Punjabi. Though I don't know हाँ, how to read Punjabi, but I have searched it afterwards. Ura, Ada, Sasa, Ha, Ha, something like that. That's the फॉलो alphabets of. फॉलो करते हो पंजाबी कल्चर को? Obviously, like I'm a Punjabi, why shouldn't I follow it? I mean, we are born Punjabi, so ये तो मतलब हमारे genes में है कि मतलब ये तो चाहिए. Even in my book as well. So I have included a lot of excerpts of Punjabiness, and you can see in the book and when you'll read. So you'll read a lot of excerpts of the Punjabis which you can relate to. अगेन हुँ, जैसे आज हम मिट्टी पाव वाली बात कर रहे थे, सानू की बात कर रहे थे, एंड बहुत सारे हमारे आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट टू दिस कि घर में ना एक वो होता था कि गाने चलते रहेंगे, सुखमनी साहिब का पाठ होता रहता है, अमृत वाणी हो गया. सो ये वाले हुँ, कॉन्सेप्ट हो गए, ये यू कैन फाइंड इट ओनली इन द पंजाबी हाउसेस, राइट? कि हुँ, हर टाइम लाउड रहना, बातें करते रहना, चिल रहना, हुँ, बातें होती रहती हैं. एंड वो होता है ना कि मतलब जो जैसे दादा दादी होते थे तो उनका भी यही रहता था कि उनके साथ एक एम्पलीफायर एक होता था या some sort of radio set is there, Walkman was there back in the time, वो रहना, ग्रामोफोन हो गया. सो दोज हुँ, थिंग्स आई हैव इंक्लूडेड इन द बुक एज वेल कि ये वाली चीजें क्या है, ये वाली चीजें पार्ट एंड पार्सल हो चुकी है पंजाबी फैमिलीज का. हुँ, एवरी पंजाबी फैमिली हैज गॉट द स्पीकर सेट. उनके पास है वो. अब चलो पोर्टेबल मार्शल एंड बोट में आ गए हैं जो हम यूज करते हैं, बट वो हर एक पंजाबी फैमिली में है. वो होएगा कि हुँ, उस पे चलना है, गुरबानी चलनी है, शब्द चलने हैं सुबह, वो हनुमान हुँ, चालीसा चलनी है, वो कुछ एक रूटीन एक रिजीम है, वो हर पंजाबी फैमिली में है. So I'll relate a lot to the Punjabiness of my side. Though again, I can't read and write Punjabi, but yes, I can relate to a lot of Punjabi. क्या-क्या Yeah. सीखते हो कुछ? एनी स्टोरीज़ फ्रॉम द Like हिस्ट्री? from the history of पंजाबी like. फ्रॉम द अच्छा, I was watching to the podcast recently of Karan Kundra. There I हुँ, came to know big things about Punjabi and why we speak very fast, why we be very हर एक चीज में हम फास्ट फास्ट क्यों होते हैं, why our हुँ, songs are very upbeat and हमारा हुँ, कल्चर क्यों बहुत ज्यादा loud and उसमें होता है कि why we are not into books, why we are into everything fast fast, right? हुँ, So he had explained it to a very greater extent and बहुत अच्छे से उसमें करण ने explain किया कि हमारे टाइम में क्या होता था. सो इट्स ऑलमोस्ट कि हम जो कमा के आते थे हम वही यूज कर लेते थे, राइट? एंड राइट नाउ ऑल्सो कि व्हेन वी केम ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, द हुँ, अनडिवाइडेड इंडिया बैक इन द टाइम, हुँ, वहां से जब हम आए सो वी सॉट रिफ्यूज इन इंडिया एंड हमारा वहां पे सारा जो भी खजाना है वो सब रह गए, ठीक है? सो उस टाइम पे बहुत सारे क्या होते थे, पंजाब एंड हरियाणा में बहुत सारे अटैक्स होते थे उस टाइम पे, राइट? हुँ, सो तुम अपने आप को अटैक से बचाओगे या तुम अपने आप को इंक्लूड करोगे, चलो हम बैठ के बुक्स पढ़ते हैं. सो हमारा लिटरेरी कल्चर इतना नहीं है. हमारे भी क्या है, हमारे में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने की क्वालिटीज हैं. मतलब सपोज वी आर एट दैट पॉइंट पंजाब हरियाणा, मतलब जहाँ पे वॉरफेयर सबसे ज्यादा हो रही है, वॉर्स सबसे ज्यादा हो रही है, राइट? तुम अपने आप को यू नो ऐसे जोन में रखना चाहोगे जहाँ पे तुम अपने आप की एनर्जी बूस्ट रखो. तभी हमारे यहाँ हुँ, पे अगर तुम देखोगे बोलियो का कंसेप्ट है, हम शादियों पे जागो निकलती है. सो हमारे हुँ, गाने वाने बहुत ज्यादा अपबीट्स हैं, राइट? हमारी जो म्यूजिक है, सो it involves very distinct qualities. So that is the one thing that I have learned from Karan, and he explained it to very, very good manner. You should go and listen to that podcast as well.
एंड जो हमारी पंजाबी कल्चर है, एंड हमारे को एक बैलेंस बनाना सिखाया जाता है कि कैसे तुम्हारे को हायर फॉर्म ऑफ स्टेट में रहना है एंड कैसे तुम्हारे को हुँ, लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी रहना है, उसमें बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, वो शुक्राना करके। एंड दिस इज द हुँ, बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम पंजाबीज, कि ये पंजाबी से ज्यादा कोई कोई बंदा नहीं कर सकता। या तो मैंने ये बहुत बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े मीन्स कि हाँ जो चौड़ में घूमते हैं, या मैंने ऐसे लोग हुँ, देखे हैं जो मतलब बिल्कुल ही जिसको किसी का डर भय नहीं है, राइट। और पंजाबी ऐसे हैं जो हर दोनों स्टेट्स में एक बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं। हुँ, जस्ट गो टू सम गुरुद्वारा, और मे बी बंगला साहिब चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, राइट। You will see people coming in Mercedes, coming in bigger cars, and हुँ, as soon as they step out of their cars, they'll be very gentle towards you. They'll bow their head down and वो सेवा करेंगे, वो लंगर बांटते हैं. You can relate to all those things, right? हुँ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये हमारे को यही सिखाया गया है, वो स्टार्टिंग से ये सिखाया गया है कि भाई नतमस्तक रहो, शुक्राना करो। तो ये सेम पंजाबी में, सब पंजाबी में। स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बोली थी ना कि आपको कि जो करवा रहा है वो गॉड करा रहा है, जो जहाँ जिसके साथ रख रहा है वो गॉड करा रहा है, वो वाहिगुरु करा रहे हैं। तो बिल्कुल, यार चाहे करण औजला को देख लो, सिद्धू मूसेवाला देख लो, दे हैव रिटन इन देयर लाइन्स कि यार कितने भी ऊपर चले जाएँ, बट जो लिखवा भी रहा है वो भी गॉड लिखवा रहा है यार हमारे से। और जितने बिल्कुल। भी ऊपर गॉड लेके गया उनको मतलब मैं तो इस चीज़ का बहुत बड़ा यू नो फॉलोवर हूँ कि मैं नहीं कुछ कर रहा। मैं कर ही नहीं सकता, मेरे में इतना पोटेंशियल ही नहीं है, करवाने वाला ऊपर बैठा है। वो बाबा बैठे हैं, वो हनुमान जी बैठे हैं जो मेरे से ये चीज़ करवा रहे हैं। हुँ, अगेन आई कैन नॉट कमिट अ क्राइम एंड से कि अच्छा ये मेरे से भगवान जी ने करवाया है, बिकॉज़ अगेन कॉन्शियस नाम की भी चीज़ होती है। ठीक हाँ, है? एंड उस चीज़ का भी ना पता है क्या होता है मयंक? करवाने हुँ, वाला ऊपर बैठा है। हाँ, हुँ, इफ यू कैन सी कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मतलब जैसे हमारे को श्री राम, जाहि विधि राखे राम मीन्स कि जैसे ही तुम्हारे को जैसे रखना है, जिस हालात में तुम्हारे को भगवान ने रखना है, वैसे ही हालात में हमारे को रहना पड़ेगा। हुँ, इफ देयर इज द डार्क डेज आर हैपनिंग, ब्राइटर विल कम। हुँ, एंड करवाने वाला जेन्युइनली बैठा है। ये तो हुँ, हम तो वी आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ कैरेक्टर इन अ प्ले, एंड दैट्स हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। वी आर जस्ट द कैरेक्टर्स। हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसकी रजा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मैम। जब तक मेरे पास हुक्म नहीं आएगा, एंड मैं हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकता। आई वॉज अगेन वेरी फनी स्टोरी। आई वॉज अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू फ्यू मंथ्स बैक। ठीक है? हुँ, एंड वेरी वेरी फाइन इंटरव्यू, सब कुछ बढ़िया, सब अच्छा हो गया। I was हुँ, expecting a positive reply. हुँ, I wasn't been selected. It was a rejection email. It came. I questioned my, बाबा कि भाई हुँ, सीन क्या है, राइट। एंड बाबा के साथ ना जनरली मेरा ऐसा कॉन्वर्जेशन होता रहता है। बाबा मीन्स हनुमान जी, राइट। सो आई हुँ, ऑलवेज लाइक गेट अलोंग विद द कॉन्वर्जेशन विद हनुमान जी कि भाई मतलब बताओ व्हाट नेक्स्ट आई शुड डू एंड ऑल, राइट। एंड आई क्वेश्चन कि मेरे को मतलब ऐसे लगा कि आई एम लाइक आई एम एक्टिंग एज अ फूल एंड आई एम क्वेश्चनिंग द अलमाइटी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा जब करवाने वाला वो है, व्हेन आई हैव हुँ, सरेंडर्ड माय होल लाइफ टू हिम, मैंने कहा व्हाई आई एम टेकिंग स्ट्रेस ऑफ इट, देयर शुड बी हुँ, नो पॉइंट। मैं उस चीज का स्ट्रेस ले ही क्यों रहा हूँ जब करवाने वाला है वो है, जब मैंने अपनी आपकी लाइफ को, अपनी जिंदगी को जब मैंने सरेंडर कर दिया है, सो व्हाई आई एम टेकिंग हाँ, इतना स्ट्रेस। कर हुँ, सकते हो कुछ नहीं, व्हाई टू टेक हुँ, स्ट्रेस। करना है तो करो, अगेन व्हाई टू टेक स्ट्रेस। हुँ। सो देयर इज नो पॉइंट। मतलब स्ट्रेस नहीं तुम लेना चाहते तो तुम्हारे को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कभी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। इवन ब्रेकअप से इस चीज़ ने बहुत निकाला मेरे को। ब्रेकअप्स नहीं मतलब हाँ, मतलब डाउनफॉल से मतलब लाइक ऑब्वियस बात है कि मल्टीपल ब्रेकअप्स। क्या चीज़? मैंने कहा मल्टीपल ब्रेकअप्स। मल्टीपल ब्रेकर्स मतलब जो आ रहा है, जो जा रहा है वो भगवान के हाथ में एंड ऑब्वियसली मतलब उस टाइम हाँ, ऑब्वियस बात है। बट हाँ, अगर इतना फर्म बिलीव होता ना गॉड में कि जिसको लाइफ में लेके आना है वो भगवान लेके आएगा एंड जिसको जब निकालना है वो उनके हाथ में है तो दैट्स देयर सेटिस्फैक्शन तब रिली रेजिलियंस बढ़ जाती है काइंड ऑफ उस चीज़ से बाहर निकलने की आई हाँ, थिंक। रेजिलियंस ऑब्वियसली तुम्हारी बढ़ती है, एंड ऑल्सो ना तुम्हारा एक फेथ होता है, फेथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है
कि हुँ, भाई मेरे को विश्वास है तो वो विश्वास है। वो आस्था होनी चाहिए तुम्हें भगवान में। एंड एवरीबॉडी चाहे तुम किसी मर्ज़ी को ले आओ मतलब लाइक आई वोंट बी सेइंग कि कोई एक्जिस्टेंस पे अब क्वेश्चन करता है, बिकॉज़ वी नो कि देयर देयर एक्सिस्ट समथिंग। चाहे तुम जो मर्ज़ी कर लो, चाहे तुम जितने बड़े से बड़ा बन जाओ, देयर एक्सिस्ट। हुँ, हुँ, चाहे तुम अगर मानते हो भगवान में सो तुम भगवान को नतमस्तक करोगे, नहीं मानते तो तुम यूनिवर्स को नतमस्तक करोगे, तुम किसी में नहीं मानते तुम अपने आप को वो करोगे। व्हाट यू आर डूइंग, हुँ, यू आर एक्चुअली थैंकिंग योरसेल्फ, यू आर थैंकिंग योर सोल, राइट? व्हाट इज अ सोल? सोल अगेन तुम्हारा कॉन्सेप्ट किस में आ जाएगा, भगवान में आ जाएगा। सो ठीक है, मतलब या पर्सपेक्टिव्स आर डिफरेंट बट थॉट प्रोसेस सबका सेम है, अलाइंड है। कोई फाइनल मैसेज, कोई फाइनल मोटिव देना चाहो ऑडियंस को कि क्या मोटिव था आपको लिखने के पीछे एंड मोटिव कुछ नहीं होता यार, अगर बहुत बहुत सिंपल मैसेज है, अगर तुम्हारा मन कर रहा है सो इट टुडे इज द डे, स्टार्ट राइटिंग इट आउट एंड सोचो मत कि क्या होएगा कैसे होएगा। रिजल्ट्स कैन बी अनएक्सपेक्टेड, राइट? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी 10 से ज्यादा बुक बिकेंगी एंड इट्स क्रॉसिंग द 5 टाइम्स ऑफ इट एंड यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड लिख के ना छोड़ दो, मतलब डू नॉट थिंक कि बिक रही है नहीं बिक रही है, इट्स अ होल प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, राइट? जैसे ही तुम लिख देते हो ना तुम्हारे में एक सेल्फ कंपोजर आ जाता है कि नहीं आई हैव डन समथिंग, राइट? एंड अगर तुम्हारे जेन्युइनली इंटरेस्ट है ना सो डोंट डोंट थिंक ट्वाइस और थ्राइस कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, क्या करूं कैसे करूं, बुक लिखूं ना लिखूं। नो, स्टार्ट राइटिंग इट, स्टार्ट फिगरिंग आउट कि तुम्हारे को करना है या नहीं करना, एंड द रेस्ट कैन बी द हिस्ट्री। या cool then Naman, any final message to the audience you want to give at the end of the podcast? At the end of the podcast, the final message is start believing in yourself, right? And stop complaining and stop making excuses and start finding your solace rather than, whatsoever we had discussed till now about the marriages, about the relationships, about the people. The one thing that I always and always say to a lot of people, find your solace means ki understand yourself, introspect about yourself. What are your positives? What are your negative? How you're reacting to a lot of situations. Rather than being dependent on someone, let's be independent to ourselves first, right? कि मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा। अगर मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा, देयर इज नो पॉइंट टू टू फाइंड समवन की जो मेरे को समझे। आई वांट अ गर्ल की जो मेरे को समझे। नो, नोबडी। यू कैन नॉट, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड योरसेल्फ, देयर कैन बी नोबडी इन द होल वर्ल्ड who can Right. understand, and no one means no one can complete you. Hmm, दे कैन कॉम्प्लीमेंट यू बट दे कैन नॉट कंप्लीट यू। मतलब तुम्हारे hmm, साथ रह सकते हैं वो, तुम्हारे को तुम्हारी पर्सनालिटी को एट्रीब्यूट कर सकते हैं बट दे कैन नॉट hmm, कंप्लीट। कंप्लीटनेस ऑलवेज एक द सेंस ऑफ वो जो कंप्लीटनेस होती है वो तुम्हारे पास खुद से आती है व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ कि तुम क्या हो कैसे हो। इंट्रोस्पेक्ट करो, start hmm, thinking from your brain rather than thinking from the societal's or the family's brain. And hmm. family is always right, parents are always right. That's it. Cool. Yeah. Cool then. बहुत अच्छा लगा बात करके. Thanks a lot for coming. So Thanks a lot thank for you so your much, time. Mayank. Thank you so very much. It was a pleasure having a conversation with you, and keep growing, man. God bless you, and you are doing a great purpose. Thank you And so much. clap for the podcast.